Namaste Gurkulians. I hope all of you are fit and fine at your homes. In the last video lecture of unit Chemical Kinetics, we have discussed all about the integrated rate expression for the zero order and first order reaction. Then these equations for the integrated rate expression for the zero order reaction, it will become equal to concentration of A is equal to A naught minus Kt. This is for the zero order reaction. And for first order reaction, it will be equal to Kt is equal to 2.303 log of A नॉट ओवर ए टी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हाफ लाइफ पीरियड. What is half life period? Half life is the time period in which initial concentration of reactants become half. मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वो टाइम पीरियड जिसमें रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो पहले की क्या रह जाए, आधी रह जाए. दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज द हाफ लाइफ पीरियड. मीन्स दिस कंसंट्रेशन ए नोट and A will be equal to A naught by 2, and here A is equal to A naught by 2. That time period is called as the half life period. It is denoted by the T half. Now we calculate the half life period for zero order and for the first order, and then we will discuss some numerical based on this formula. This is equation for the zero order, this is equation for first order. So first calculate for the zero order reaction half life period. So at half life the final concentration A will be equal to A naught. Initial concentration क्या हो जाएगी, it is equal to half. Put in equation, so it will be A naught. इसकी जगह हम क्या रखें, A naught by 2 will be equal to A naught minus K into T. T कौन सा हो जाएगा, this T is T half. So here यहाँ से अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो K इंटू टी हाफ विल बी इक्वल टू A नोट, यहाँ पर है ये उधर जाएगा माइनस, सो इट विल बी A नोट बाई 2. सो वी कैन कैलकुलेट K इंटू टी हाफ विल बी इक्वल टू A नोट बाई 2, A नोट माइनस A नोट बाई 2. सो टी हाफ विल बी इक्वल टू A नोट इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2 इंटू K. This is the half life period for the zero order reaction. So we can write here T half will be equal to A naught by 2K. Half life period for the zero order reaction. Now similarly we can calculate half life period for the first order reaction. उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ से A जो है, A will be equal to इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या होगा, हाफ. पुट इन दिस इक्वेशन, देन इट विल बिकम K इंटू टी हाफ इक्वल टू 2.303 log of A नोट इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल इज A नोट बाई 2, सो इट इज A नोट बाई 2. इससे कैंसिल हो जाएगा. देन टी हाफ विल बी इक्वल टू 2.303 बाई K इंटू लॉग, ये 2 पर चला जाएगा, log 2. देन वी कैन कैलकुलेट टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.303 एंड log 2 विल बी इक्वल टू 0.3010 बाई K. व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस it will become equal to 0.693 by K. Approximately it is equal to this. So for the first order reaction half life period is 0.693 by K. These are the equations A
at time t, concentration at time t is equal to A naught minus Kt, and Kt is equal to 2.303 log A naught by A, and half life period T half for 0 A naught by 2K and T half for first order 0.693 by K. Now we will discuss some graphs and then questions based on this. First is the graph between rate and concentration. Rate versus concentration. Concentration of reactant. So for the zero order reaction, we know that rate is equal to, rate is independent of concentration. We can say that because for the zero order, rate will be equal to K into concentration of reactant. कोई भी हमारा reactant है उसकी power 0, it will equal to 1. So we can say that rate is equal to K for the zero order reaction. तो यहाँ से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ बिटवीन रेट एंड रेट के साथ किसका, रेट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन दिस. So it will become a straight line because it is independent of concentration. This is the graph for the rate and concentration with respect to zero order reaction. For the first order reaction, rate will be equal to K into concentration of reactant. तो यहाँ से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें between the rate and concentration, then it will become this. And for the second order reaction, it is also like this but slightly steeper. This is for the first order and this is for second order. This is our rate and here is concentration. We can calculate all these three graphs with the help of this. Next our is T half versus concentration. T half and this is our concentration. So graph for the zero order reaction, T half versus concentration A naught. So the graph will be, these are directly proportional, so graph will be like this. T half for the zero order and concentration. Zero order reaction. Now graph between T half and concentration for the first order reaction. अगर इस तरह से हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये इंडिपेंडेंट आएगा बिकॉज T half not dependent on concentration of reactant. So these are the main graphs which depends on the zero order and first order. First rate versus concentration, rate versus concentration, and this is T half versus concentrations which depend directly, straight line which are not dependent, also parallel to the x-axis. Now we are going to discuss some numerical portions based on this. So students, our first question is the decomposition of ammonia on platinum surface. Our first question is decomposition of ammonia. It is given as 2NH3 platinum. It will give N2 plus 3H2. This is decomposition of ammonia. It is zero order with respect to K. K की वैल्यू हमें दी है, it is equal to 2.5 10 to the power minus 4 mole per liter per second. What is the rate of production of N2?
we have to calculate rate of production of N2 and H2. ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी हैं. We have given the rate of decomposition of ammonia. It is in zero order reaction given in the question, and we have given value of rate constant. We know that rate will be equal to K into concentration of reactant to the power 0, and this value will be equal to 1. So rate is equal to K for the zero order reaction. So we can say that rate of reaction is equal to this. Put this value, then rate of reaction. अभी हमने जो पहले लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं कि हाउ यू राइट इट. रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू -1/2. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगी, सो इट विल बी dNH3/dt विल बी इक्वल टू, एक ही है इसका कोफिशिएंट, सो इट विल बी dN2/dt इन द प्लस साइन, एंड इट इज इक्वल टू +1/3 dH2/dt. We have given rate of reaction. Rate of reaction, yeah, it means it is equal to K. We have to calculate rate of production of N2. मतलब हमें ये निकालना है, और यही तो हमारा rate of reaction के इक्वल है. So we can say that this value which is given in the question 2.5, it is equal to similarly this. क्योंकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी तो dN, तो इसके तो कोई कोफिशिएंट से डिवाइड करना ही नहीं है हमें. फिर सेकंड पार्ट इसमें क्या पूछा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन. तो जो ये आया उसको हमें 1/, ये पूछा है हमसे, तो ये निकालने के लिए 3 से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴. ऐसा क्वेश्चन हमने पहली क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि दिस इज द रेट of production of hydrogen, and when we divide it by 3, this is called as rate of reaction. Similarly, rate of production of nitrogen and rate of reactions are equal, because here stoichiometric coefficient is equal to 1, and here dNH3/dt, this is rate of disappearance of ammonia, but when we divide it by 2, this is rate of reaction. This is our first question based on this. अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन ए इज दिस. रेट कांस्टेंट की हमें वैल्यू दी है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रेट कांस्टेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इट विल बी इक्वल टू 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए. ए की जो कंसंट्रेशन है इट विल फॉल फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.075. हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट टाइम. रेट कांस्टेंट हमें गिवन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, फाइनल 0.075. इससे ये इसमें आ रहा है, हमें टाइम निकालना है के गिवन. तो डायरेक्टली हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन. सो इक्वेशन फॉर दिस इज गिवन हेयर. सो वी कैन ए इज इक्वल टू A naught initial concentration minus KT. Then you can easily calculate KT will be equal to A, ये इधर आ जाएगा A naught minus A and T time A naught minus A by T. Initial concentration we have given is 0.1 minus final concentration is 0.075 by K की वैल्यू हमें गिवन है, K इज 0.003. सो यू कैन सोल्व इट. इट विल बी इक्वल टू 8.3 सेकेंड.
अगर हम इसको सोल्व करेंगे इट विल बी 8.3 सेकेंड हो जाएगा इस तरह से। सिंपली हमें क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए जो रिएक्शन है, दिस इज रिएक्शन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो वो हमने यहाँ पर अप्लाई की है। इसको अप्लाई करते ही हमने क्या है, टाइम का फॉर्मूला निकाल लिया। दोनों कंसंट्रेशन गिवन इन द क्वेश्चन एंड के इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, डायरेक्टली अप्लाई। सारे क्वेश्चंस इन इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड होंगे। वन फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। रेट कांस्टेंट हमें गिवन है, K इज इक्वल टू 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1/16 टाइम्स। या मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन से कितने टाइम हो गया, 1/16 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिटन हेयर, if we consider initial concentration is A, then final concentration at time t will be equal to A naught by 16। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन से कितने गुना घट गया है, 1/16 टाइम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। सो यू कैन पुट एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ टाइम कितने समय में होगी, t इज इक्वल टू 2.303 बाई K, K is equal to 60 log of initial concentration is A naught and final is A naught by 16। ये 16 क्या आ जाएगा, ऊपर कैंसिल कर दो। सो टाइम विल बी इक्वल टू 2.303 ओवर 60। log 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 4। सो इट विल बी इक्वल टू 4 log 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.3010। यू कैन सोल्व इट and its value become equal to 4.62 10 to the power minus 2। 4.62 into 10 to the power minus 2 second। सिंपली हमें क्या करना है, अप्लाई करना है इक्वेशन को। अप्लाई कैसे करोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अप्लाई करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन A नोट, फाइनल क्या है A नोट बाई 16, तो उसको अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आफ्टर द हाफ लाइफ टाइम। अगर हमें निकालना है कि हाफ लाइफ टाइम्स एन हाफ लाइफ टाइम्स के बाद अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला भी होता है कंसंट्रेशन आफ्टर एन हाफ लाइफ। तो A आफ्टर हाफ लाइफ टाइम्स, तो इनिशियल कंसंट्रेशन को डिवाइड कर देंगे 2 raised to the power n से। n यहाँ पर क्या आएगा, n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये वो अमाउंट है जो n हाफ लाइफ्स के बाद बचेगी। जैसे हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 100, एक हाफ लाइफ आया, देन इट विल 15, देन इट विल बी 25 सेकेंड एंड इन थर्ड इट इज 12.5। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 1 2 3। अगर हम इसमें कैलकुलेट करें, इनिशियली 100 रखोगे, डिवाइड बाई 2 raised to the power 3, सो इट इज़ 8, तो 100 by 8 इट विल बिकम इक्वल टू 12.5। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। A first order reaction is found to have rate constant, find half life period। अगर हमें K की वैल्यू गिवन है, इट इज़ गिवन एज 5.5 10 to the power minus 14 second inverse, then you can easily find out half life period, because half life period for the first order reaction is 0.693 by K। K की वैल्यू गिवन है, डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो यू कैन कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड। अगर हमें K कहीं पर भी गिवन है हाफ लाइफ इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो डायरेक्टली उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Show that in case of first order reaction the time required for 99.9% of the reactant
टू टेक प्लेस इज बिकम 10 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड। ये जो टाइम होगा इट इज़ 10 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें ये पॉइंट ये एक तरह से प्रूव करना या क्या कह सकते हैं, एक तरह से इसको कैलकुलेट करना है कि टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू 99.9 इतने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, वो 10 टाइम्स होगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ द रिएक्शन। सो डायरेक्टली हम दोनों के लिए पहले टाइम पीरियड निकालते हैं, फिर उसको हम यूज़ कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। सो अगर 50% वो कंप्लीट होता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं इट इज़ 100 मान के चल लेते हैं। इफ़ इट इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन इज 100 देन फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t विल बी 50% कंप्लीट, सो इट इज़ 50। सो T50 इसके लिए वैल्यू क्या आई, इट इज़ इक्वल टू 2.303 बाई के log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज 100 एंड फाइनल इज 50। फाइनल क्या है, 100 का क्या हो गया है, हाफ 50% कंप्लीट हो चुकी है, सो इट इज 50, सो इट विल बी 2। सो वी कैन राइट इट एज 2.303 बाई के log ऑफ 2। दिस इज फॉर द हाफ लाइफ पीरियड या 50% कंप्लीशन में हमारा ये आएगा। हमें फिर निकालना इसके लिए है 99.9। अब इस 99.9 में अगर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 100 देन फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t when 99.9% इज completed, सो इट विल बी 100 माइनस 99.9, ये चला गया इसमें से, सो इट विल बी 0.01 या इट इज 0.1, कितना रह जाएगा, इट इज 0.1। तो यहाँ से निकाल लेते हैं टाइम फॉर 99.9%, इट विल बी 2.303 बाई के log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन दिस इज 100 एंड फाइनल कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, इट इज 0.1, सो यू कैन पुट इट हियर 0.1। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी इट इज 2.303 बाई के log ऑफ, ये ऊपर जाके प्लस का, सो 10 रेज़ टू द पावर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया, दोनों केसेस में क्या निकाल लिया, टाइम पीरियड फॉर द 50% कंप्लीशन एंड टाइम पीरियड फॉर द 99.9% कंप्लीशन। अब हमें रिलेट करना है 99.9% को 50% के साथ, तो हम क्या करें, इस इक्वेशन के डिवाइड में इस इक्वेशन को कर देते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन फर्स्ट, इसके डिवाइड में क्या करें, t टाइम पीरियड फॉर 50% कंप्लीशन, तो इसके डिवाइड में यहाँ पर अगर इसको यहाँ लिख ले, यहाँ पर इसके डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा 2.303 बाई के log ऑफ 2, इससे कंप्लीट कैंसल, तो ये आ जाएगा log 10 रेज़ टू द पावर 3 बाई log 2। इसको अगर हम यहाँ पर सोल्व करें, सो इट विल बी 3 log ऑफ 10, ये क्या लिखा जाएगा, 3 आगे आ जाएगा 3 log ऑफ 10 और नीचे आया log 2, यही वैल्यू, तो ये तो वैल्यू क्या आ जाती है 1, सो 3 बाई log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 10। तो ये है 99.9 बाई T50, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आई, इट इज़ इक्वल टू 10। तो इसको इधर आके मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा जो प्रूव करना था। सिंपल है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर कभी भी हमें किन्हीं दो टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन पूछा जाए कि 50%, 75%, 87.5%, ये इतने टाइम होगा या इनमें क्या रिलेशन आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों के लिए इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। सिंपली उनके लिए जो जो वैल्यूज दी गई हैं वो पुटअप करेंगे, वो पुटअप करने के बाद उन दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो योर डिज़ायर्ड रिजल्ट विल केम, जो भी हमें चाहिए वो हमारा आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देयर हाफ लाइफ
and graphical representation for this reaction. It is very important part of this unit, chemical kinetics, first order reaction, zero order reaction, numerical portion, graphical representation. सो इसके ऊपर जितने भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मिलते हैं उनको सोल्व कीजिए और एनसीईआरटी कंपल्सरी उसको सोल्व कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर या आवर unit in the next video lecture. Till then,